added in the thyroid gland, it can be the part of the thyroid gland. Then it can be present in the carotid sheath, and in 2% of the cases, it can be high cervical, right? So these are the locations. You can see that this is retropharyngeal, this is retroesophageal, this is mediastinal, this is thymic, intrathyroid, and in the carotid sheath. So these are some rare locations of thyroid gland. Now, historically, Sir Richard Owen was the first man who gave description to the thyroid gland after examining an Indian rhinoceros, right? So, and he located this gland. And Anton Wolfer was the person in 1879 who developed tetany in a patient who underwent a total thyroidectomy, right? This was first of all because thyroid was not related with the tetany or fits. So it was found out that one person who's underwent thyroidectomy, he develops fits. Ivan Sandstrom was a Swedish medical student, and he grossly and microscopically described this gland for the very first time. Because the calcium measurement started in 1905, so it was associated with parathyroid gland. So 1905 and 09, it was established that calcium has something to do with the parathyroid gland, right? And in 1925, successfully, sorry, first successful parathyroidectomy on 38 years old man with severe bone disease secondary to osteitis fibrosa cystica. So this was very first time operation was done. Now, parathyroid hormone gland, it produces a hormone which is called PTH, that is parathyroid hormone. And as the other hormones, it's also a group of amino acid that it's a protein, and it is produced in the parathyroid gland in its precursor form, that is triple PTH, that is pre-pro parathyroid hormone, right? And it is first converted into double PTH, that is pro-parathyroid hormone, and finally an 84 amino acid parathyroid hormone is produced. Once parathyroid hormone is produced, it has got a half-life of 2 to 4 minutes, right? It's very quickly it gets outside the circulation once it is produced, right? And in the liver, this PTH is activated into its N-terminal component, and into it is converted into two components. N-terminal is the active component, and C-terminal is relatively inactive component. So this is how this hormone is processed in our body. Now the functions of parathyroid hormone. It, as you will see, that it will do everything which would increase the calcium in the blood, right? As you all know, that there are two types of cells in the bones: osteoclast and osteoblast. Osteoblasts produce the bone, and osteoclasts they just resorb the bone, or they eat up the bone, right? So this PTH, it activate and increase the number of the osteoclasts, right? So bone will be eaten up, and what is in the bone? Calcium. 90 more than 90% of the or body calcium are in the bone. So once the bone is eaten up, calcium is released, and this calcium comes into the circulation. So it will cause hypercalcemia. Secondly, in the kidney, where calcium is filtered in the glomerulofiltrate, and under the effect of PTH hormone, this calcium will get back into the circulation, right?
It will get back into circulation, and uh, calcium will be retained. It will not be lost. So it increases the renal tubular reabsorption of calcium. Thirdly, it that vitamin D is activated in the kidney, right? So once vitamin D is activated, unless it is activated, it is of no use to the body. So active form is 125 dihydroxy cholecalciferol or dihydroxy vitamin D. So this PTH is the stimulus for activation of this vitamin D, and vitamin D ultimately affects on our body, and it will also increase the calcium in the circulation. Then, in addition to calcium, this PTH has got effect on another mineral, which is phosphate. So, calcium is retained in the body, in the glomerular filtrate, it is reabsorbed, while phosphate has got the opposite effect, that this phosphate will not be reabsorbed in the glomerular filtrate, and it will be let out in the urine. So it increases the urinary phosphate excretion, because calcium and phosphate, they are interlinked with each other. So only one of them can be lost at a time, other is reabsorbed. So if phosphate is lost, calcium will be retained. Then GIT is another place where when we eat certain diets rich in calcium, so that calcium is reabsorbed from the gut. And if this parathyroid hormone is not present, this absorption will not take place, right? So these all effects, they ultimately increases the calcium in the body, rather in the circulation. Now, what I have explained in the slide, this is in the diagrammatic form. PTH effect on the bone increases the bone resorption, plasma calcium is increased. Kidney reduce phosphate, increase calcium absorption, so plasma calcium is increased. And finally, in the kidney, this PTH converts 125 hydroxy vitamin D3 into 125 dihydroxy vitamin D3, and this active form of vitamin D increases the intestinal absorption of calcium. So these are the exact places from where this calcium comes into the body. Then this is another perspective, that parathyroid hormone, it will increase absorption, same what we told in the previous slide. Then there is an hormone called calcitonin, right? So you must know that parathyroid hormone and calcitonin, they are opposite to each other. This calcitonin will negate, negate, and negate, and negate every effect which the parathyroid hormone does. It will do opposite what the parathyroid hormone. We'll see from where this calcitonin is produced, right? Now, we will be discussing hypercalcemia, because ultimate effect of parathyroid hormone is increase calcium in the body. So हाइपरकैल्सीमिया की कॉजेस हम आप देखेंगे, और इसके लिए एक आपने मैंने याद करना है, जो है vitamins trap. Vitamins trap. So these are the causes of hypercalcemia. Remember that 80% of all the cases, they are due to malignancy or primary hyperparathyroidism. These are the two most important causes of hypercalcemia, right? But the other causes are vitamins, ingestion of lot of vitamins, immobilization, thyrotoxicosis, Addison's disease, milk alkali syndrome, right? And any inflammatory disorder in the body will cause hypercalcemia.
Neoplastic related diseases like, as I said, malignancies. Then sarcoidosis is another condition which will cause hypercalcemia. Then thiazide, diuretics, and lithium is a drug which would cause. These are the two drugs, thiazide and lithium. Who, if the patient is taking, it would be causing the hypercalcemia. Rhabdomyolysis, that is the breaking of our muscles, massive breakdown. So rhabdomyolysis is another cause of hypercalcemia. Then HIV/AIDS, and finally, four conditions they come under P. That is Paget's disease of the bone, parenteral nutrition, pheochromocytoma, and parathyroid disease. So all of these this hyperparathyroidism is comes under parathyroidism. So these are all the causes of hypercalcemia. अब calcitonin का हम जिक्र किया था. So it's a 32 amino acid long peptide and is produced by parafollicular or C cells of the thyroid interstitium, right? So thyroid gland produces calcitonin. Therefore, calcitonin is physiologically antagonist to PTH. जो मैंने बताया था कि जो जो भी फंक्शन होते हैं PTH के, उन सबको ये रिवर्स करता है, right? So this will do exactly opposite what the PTH do. Reduces the osteoclastic activity, reduces kidney reabsorption of calcium, and reduces intestinal absorption of calcium. So it would do opposite to this this PTH. And mind it that calcitonin is it is also a very important marker because it is produced by the thyroid gland. So it's a very important tumor marker in medullary carcinoma of the thyroid, right? So it was just by the way. ये जो सारा कुछ मैंने बताया है, so these are the effects of calcitonin. And this calcitonin is also given in the treatment of Paget's disease. So anything which causes hypercalcemia, right, would be reversed by giving calcitonin. But the only medical indication for calcitonin is Paget's disease of the bone, right? Now we'll come to hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism of three types: primary, secondary, and tertiary. So what are the differences in PTH, this primary hyperthyroidism, secondary and tertiary? इनमें difference क्या होता है? Primary hyperthyroidism जो है hyperparathyroidism, it is unregulated overproduction of PTH resulting in abnormal calcium homeostasis, right? So it is unregulated. Without any secondary cause, this happens, and automatically the primary defect is in the parathyroid glands. So it can be adenoma, it can be parathyroid hyperplasia, or it's a combination of two. So this will cause hyperparathyroidism. So it is the primary hyperparathyroidism. Defect is in the parathyroid glands. Then there are certain conditions which if they are present in the body, they would cause the parathyroid gland to function more. And can you guess what will be the situation in which parathyroid gland has to function more? Of course, hypocalcemia. Anything which would cause hypocalcemia would trigger parathyroid glands, right? And they would start functioning more. So secondary hyperparathyroidism, it is secondary to certain chronic abdominal stimulus, and I'll let you know what are those. Then another terminology, tertiary hyperparathyroidism. So it is the autonomous hypersecretion. So it is
neither due to a defect in the parathyroid gland, nor due to some secondary cause, but there is defect, autonomous production or hypersecretion of PTH. अब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो है इसका इंसिडेंस इज 27 पर 100,000 और इसकी जो पीएच कहते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, यहाँ पर हमने पीएच का लफ्ज यूज किया हुआ है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। सो इसका जो प्रेवलेंस है इट इज 0.1 to 0.3%। विमेन में इट इज मोर कॉमन इन द विमेन of age more than 60, right? So it is more than 1%. So here the prevalence is 0.1 to 0.3, but the women of more than 60%, 60 years of age, they have got a prevalence of more than 1%. So it's very common amongst them. अब इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? प्राइमरी जो है इसकी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। वन इज़ द एडिनोमा ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। सो एडिनोमा जो होता है इसके जो एडिनोमा आपको पता है कि क्या होता है, जो आपके ग्लैंड्स होते हैं उसकी जो लाइनिंग होती है उसके सेल्स खुद ब खुद हाइपर ग्रोथ उनकी होती है और एक ट्यूमर सा बन जाता है। इट इज़ कॉल्ड द एडिनोमा एंड इट्स अ नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। So adenoma of the parathyroid gland, it would cause primary hyperparathyroidism. It can be a single adenoma, it can be multiple adenomas, right? Then secondly, there would be hyperplasia. So there is not a focal defect in the parathyroid gland, but it is a diffuse due to diffuse hypertrophy or hyperplasia of the gland. This hyperthyroidism takes place. So primary key causes adenoma, which can be single or multiple. They can be hyperplasia or they can be parathyroid carcinoma. So adenoma is a benign tumor and carcinoma is a malignant tumor. So प्राइमरी की ये कॉज। अब सेकेंडरी कॉजेज जो हैं उसमें किडनी डिजीजेस आर ऑन द टॉप। chronic renal failure, anything which would cause hyperphosphatemia, it appears to be that would be an important in the development of parathyroid hyperplasia. So मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है इनका एक रिलेशन होता है कि जब कैल्शियम फॉस्फेट ऊपर आएगा तो कैल्शियम नीचे जाएगा, राइट? सो हाइपरफॉस्फेटीमिया जब होगा, राइट, तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑटोमेटिकली लो होगा और क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, राइट? सो हाइपोकैल्सीमिया जब भी होगा, सो इट इज प्लाज्मा कैल्शियम जब भी लो होगी, so it would be a stimulus for the parathyroid gland to produce more of PTH, and it would through these effects it would increase the calcium. So hyperphosphatemia is another stimulus for secondary. Anything which causes hyperphosphatemia, it would cause the thyroid hyperplasia. So these are two most important secondary causes of hyperparathyroidism. So this is the secondary hyperparathyroidism. Now tertiary जो है इसकी etiology is unknown. An unknown change may occur in the set point of calcium sensing mechanism to the hypercalcemic levels. अब क्या होता है कि जो organs हैं इनके अंदर कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम सेंसिंग चैनल्स हैं, सॉरी कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स हैं, नॉट द चैनल्स, रिसेप्टर्स। सो ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है और उनकी जो प्रॉपर सेंसिंग है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से ऑटोनोमस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है पैराथायराइड हार्मोन की, राइट? सो दीज आर द इटियोलॉजीज ऑफ हाइपरपैराथायराइड. Now this is the location, and here is the difference. What is the difference between adenoma and hyperplasia? Adenoma में कोई एक फोकल जो ग्लैंड है उसका भी एक पार्ट वो जो है वो
एक एडिनोमा बन जाएगा। बाकी देखें आप ये तीनों ठीक हैं, राइट। जबकि इन केस ऑफ हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि सारे के सारे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, राइट। ये छोट नॉर्मल साइज है और ये सब के सब बड़े हो गए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड एडिनोमा। ग्रॉसली या मॉर्फोलॉजिकली आपको क्या फर्क है ना। ये जो हमने बताया कि प्राइमरी जो है कार्सिनोमा एडिनोमा हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज पीटीएच और फिर हाइपरपाराथायरॉयडिज्म। जबकि सेकेंडरी या रीनल फेलियर की वजह से होगा, जिसमें कि फॉस्फेट जो है वो रिटेन हो जाते हैं और कैल्शियम बॉडी लूज कर देती है इन केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। सो हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। फिर अगेन इट वुड कॉज hyperplasia and increase PTH and finally increase calcium, right? So what happens if there is a vitamin D deficiency? Small intestinal disease, क्योंकि small intestine में 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री गट पे भी इफेक्ट करती है, जो हमने पीछे देखा था कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो जाए। सो इन सर्टन प्रॉब्लम्स this function is lost. So this would be this vitamin D, if it is absent, yeah, if it is not adequately taken in the diet, vitamin D deficiency, so calcium will not be absorbed and ultimately hypocalcemia hoga, and hypocalcemia will stimulate the parathyroid gland to produce more of the PTH. So vitamin D deficiency is another cause of secondary hyperparathyroidism. अब एक और रीज़न है जिसमें कि ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी पीटीएच बहुत ज़्यादा होता है। अब आपने सुना होगा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं। Certain malignancies, long before they become evident or they appear in the body, या वो विजिबल जब होती हैं, सो उससे बहुत पहले वो कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, एंड दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। और बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू वो इफेक्ट कॉज करती हैं, जिसमें से एक मैकेनिज्म है कि वो सर्टन हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, एंड वन ऑफ देम इज द एक्टोपिक या पैराथायराइड हार्मोनल प्रोडक्शन बाय रीनल सेल कार्सिनोमा। सो देयर आर सर्टन कैंसर्स, रीनल भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, which would start producing parathyroid hormone. Normally it is produced by the parathyroid gland, but malignant cells anywhere in the body will, if they start producing this PTH, and so all these effects will happen in hyperthyroid. So this is called the parathyroid syndrome or paraneoplastic syndrome of certain malignancies. ये बात हमने कर ली है कि क्या इफेक्ट होता है। Now, अब क्या फीचर्स क्या होंगे क्लिनिकल फीचर्स हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के, ये यहाँ पर देखें। अल्टीमेट जो फाइनल कॉमन पाथवे है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म से, वो क्या होगा कि बॉडी का जो या ब्लड का जो कैल्शियम है, बॉडी का नहीं ब्लड का जो कैल्शियम है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया जो है वो सर्टन क्लिनिकल फीचर्स प्रोड्यूस करता है, और इसमें से वन इज Epuls. What is Epuls? It's a giant cell tumor of the mouth. ये मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगा। Certain tumors, they are very specific to certain condition, and giant cell tumor of the oral mucosa, it is related with hyperparathyroidism. Then, because there is excessive calcium in the blood, so this blood goes everywhere in the body, and certain places they are more liable to get calcified. That is, there is metastatic calcification. Metastatic का मतलब ये नहीं है कि malignancy है कोई, but metastasis का मतलब ये होता है कि एक चीज एक जगह से उठी और दूसरी जगह जाकर बैठ गई, उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। सो दिस इज कॉल्ड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, राइट, बिकॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया दिस calcification occurs. It can occur in the lung, it can occur in the eyes, and anywhere. So metastatic calcification. Then stomach is another place where this calcification affects, and it will ultimately cause multiple peptic ulcerations. So hypercalcemia is one of the
investigation which you should do in a person who has got chronic dyspepsia, in which you are suspecting peptic ulcer disease, right? Then it would get deposited in the pancreas and it would cause pancreatitis, right? अल्टीमेटली मसल्स जो हैं ये भी इफेक्ट होते हैं हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, जिससे कि मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है या मस्कुलर वीकनेस हो जाती है. अब ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो हो रहा है, हमने बताया था कि पीटीएस का एक इफेक्ट ये है कि बोन्स पे इफेक्ट करता है और ऑस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, राइट? तो उससे क्या होगा, बोन की रिजॉर्प्शन होती है, राइट? सो सर्टन पैटर्न्स, कुछ ऐसे पैटर्न बन जाते हैं जो कि बड़े कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और उनमें से एक जो है दैट इज सॉल्ट एंड पेपर स्कल. आप जब एक्सरे करवाते हैं स्कल का तो आप देखते हैं कि स्कल की डीकैल्सिफिकेशन हो गई है, और आपको जैसे आपका पेपर पॉट होता है या सॉल्ट का डालने वाला वो जो बॉटल होती है उसके अंदर डॉट डॉट्स होते हैं, इसी तरह स्कल के अंदर आपको जो है वो हाइपो एक्वेक शेडोज या डीकैल्सिफाइड एरियाज नजर आएंगे, राइट? सेकेंड थिंग इज ऑस्टियाइटिस fibrosa cystica. Osteitis is inflammation of the bone. Fibrosa मतलब के fibrosis भी होता है, और cystica इसमें cyst भी बनती है. So osteitis fibrosa cystica is another characteristic feature of hyperparathyroidism. और इसमें होता क्या है कि सब पेरीऑस्टियल रिजॉर्प्शन होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह है, हमने कहा था बोन के अंदर रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है. सो एक स्पेसिफिक जगह दैट इज सब पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के नीचे वाली जो जगह है वहां पर जब ये रिजॉर्प्शन होती है तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है जिसे हम ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं. फिर इसी तरह जब किडनीज में जाके ये कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो इट इज कॉल्ड द नेफ्रोकैल्सिनोसिस. नेफ्रोकैल्सिनोसिस ये होता है कि रीनल स्टोन और नेफ्रोकैल्सिनोसिस में क्या फर्क है कि नेफ्रोकैल्सिनोसिस में सारे का सारा जो रीनल पेरेन्काइमा है उसके अंदर कैल्शियम के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जबकि रीनल स्टोन में एक स्पेसिफिक किडनी स्टोन जो हैं इसमें एक स्पेसिफिक जगह पे स्टोन्स बन जाते हैं, बल्कि ये स्टोन्स जो हैं पेरेन्काइमा के अंदर नहीं होते बल्कि ये आपकी पेल्विक इलीसियल सिस्टम के अंदर होते हैं, राइट? सो नेफ्रोकैल्सिनोसिस या रीनल स्टोन्स और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, याद रखें. इसी तरह फिर जहां पर भी स्टोन्स होंगे वहाँ इन्फेक्शंस होंगी, तो रीनल इन्फेक्शन रिकरेंट जो है इट इज अनदर फीचर ऑफ hypercalcemia, yeah, hyperparathyroidism. And ultimately, because of the repeated insults to the kidney and certain other mechanisms, the kidneys fail. So, renal failure भी हो सकता है अगर this hypercalcemia remains untreated. So these are the all clinical features which I told you, and these features they are enlisted rather than in the diagrammatic form. यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्मल जो है आर्किटेक्चर है बोन का, राइट? ये बोन का मैट्रिक्स है और इसके अंदर डिपॉजिट होता है कैल्शियम एपिटाइट्स जिसे हम कहते हैं, और ये ऑस्टियोपोरोसिस है कि आप देखें कि कितना कैल्शियम जो है वो लॉस हो गया या इसका आर्किटेक्ट कितना लॉस हो गया. सो अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस होता है. Muscular weakness, polyuria, polydipsia, hyposthenuria. What is hyposthenuria? It's a very rare terminology. It's a rare condition. Hyposthenuria में ये होता है कि जो because of this hypercalcemia आपका जो यूरिन है जो बनता है उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत लो होती है, यानी हाइपो ऑस्मोलर यूरिन बनता है, राइट? सो कैल्शियम हैज something to do with the urine osmolarity. So once there is hypercalcemia, so it will because of hyperparathyroidism it would cause low osmolarity urine production. It is called hyposthenuria, right? इसीलिए यूरिन का रिएक्शन भी अल्कलाइन हो जाता है. फिर कैल्सिनोसिस की बात हमने की है, इसको कोरल स्टोन्स कहते हैं. सो इफ देयर इज नेफ्रोकैल्सिनोसिस, इसका दूसरा नाम कोरल स्टोन्स भी है. लाइक जैसे आपको कोरल जो है वो रीफ्स वगैरह आप देखते हैं उसी की तरह की ये कोरल स्टोन्स होते हैं, राइट? पोर एपिटाइट, लॉस ऑफ वेट, कैलकुलस, पेंक्रेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर्स, हाइपरटेंशन. आपकी जो आर्टरीज हैं
उनकी जब कैल्शियम ज़्यादा बढ़ता है तो आर्टरीज की वॉल में भी जमा है, उसकी वजह से आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। जैसे कि ओल्ड एज में जाके आपकी इलास्टिसिटी कम होती है, सो अगर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है तो ये इधर ही इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और हाइपरटेंशन लोगों को होती है। इसलिए कैल्शियम आपको पता है कि उसका जो हार्ट का जो सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम, उसके साथ भी उसका ताल्लुक है कैल्शियम का। सो बिकॉज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, heart palpitation or certain arrhythmias can also occur. So these are all the clinical features of hypercalcemia or hyperparathyroidism. LVH, left ventricular hypertrophy, because of hypertension. Then headaches, bone and joint pains होती हैं. So slow and shaken duck-like gait. So because हमने बताया था कि proximal myopathy होती है, muscle की weakness होती है. So because of the proximal weakness of your hip muscles, it would be dwindling gait, या जिसे हम pregnant duck like ऐसे 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 पेशेंट चलता है, ठीक है. So this is called the shaken or duck-like gait. फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये जो आपको पिक्चर दिखाई है ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है इसमें. इसी तरह जब ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बोन का जो स्केलेटन है वो खुद कमज़ोर हो गया है, तो अब अगर ज़रा सा भी ट्रॉमा होगा तो ये बोन टूट सकती है. सो स्पॉन्टेनियस या फ्रैक्चर्स विद मिनिमल ट्रॉमा दैट कैन अकर. सो दिस इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म explained in one sentence. Stones, bones, groans and moans, right? Stones, kidney stones, bones, bone pains, groans. Groans कहते हैं कि abdominal पेन्स, पेप्टिक अल्सर की वजह से भी और हाइपरकैल्सीमिया वैसे भी पेन एब्डोमेन कॉज कर सकता है. मोन्स, जब पेन होगी तो फिर मोन मोन करता है बंदा, कर्राता है जिसे हम कहते हैं. So stones, bones, groans and moans. So this is hyperparathyroidism. अब कैल्शियम इन्वेस्टिगेशंस में हम सीरम कैल्शियम चेक करते हैं सबसे पहले. नॉर्मल जो है वो 2.5 मिलीमोल्स पर लीटर है टोटल कैल्शियम, जबकि आयनाइज कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम 99% जो है इट इज बाउंड टू दी प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट कॉमनली एल्ब्यूमिन, बट 1% जो है वो आयनाइज फॉर्म में होता है, एंड दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम. सो 1 to 1.4 millimoles जो होता है that is ionized calcium, right? और 2 to 2.5 is total calcium. So if this serum calcium increases more than 2.5, it is called hypercalcemia. और other definition is कि ionized calcium अगर more than 1.4 है, so फिर भी आप इसको hypercalcemia. Normally जो most of the laboratories they check the total calcium, and मतलब आयनाइज कैल्शियम के लिए आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम करते हैं. अच्छा, अब हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस किसे हम कहते हैं? इट इज प्रेजेंट व्हेन सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और कार्डियक अरिथमियाज आर प्रेजेंट इन द पेशेंट विद अ सीरम कैल्शियम ऑफ 3.5 और मोर. सो 2.5 नॉर्मल लेवल है, 3.5 से ज़्यादा अगर हो जाए और साथ में न्यूरोलॉजिकल और कार्डियक सिम्टम्स भी हों, so this is called hypercalcemic crisis. And even in the absence of neurological and cardiac arrhythmias, if this calcium is more than 4, it will be called hypercalcemic crisis, right? So ये एक important चीज आपने याद रखनी. Now what is the relation of serum albumin and serum calcium? आपको पता है कि 90% calcium is bound to serum albumin. इसीलिए जब भी कभी हाइपोएल्ब्यूमिनिया होगा, आपका जो वो है कैल्शियम लेवल है, वो सॉरी एल्ब्यूमिन लेवल है, वो जब कम होगा, आई एम सॉरी लाइट चली गई इसलिए यू कांट बी एबल टू सी मी. जब आपका कैल्शियम लेवल जो है वो सॉरी एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा तो क्या होगा कि जो कैल्शियम है वो उसको बाइंड करने के लिए एल्ब्यूमिन नहीं मिलेगी, राइट? तो इसीलिए आपका जो कैल्शियम है ज़्यादातर वो
बाउंड फॉर्म में होता है, तो जब वो अनबाउंड होगा तो वो डिटेक्ट ही नहीं होगा। सो इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी कैल्शियम होगी बॉडी में पूरी लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रही होगी, ठीक है। यानी हाइपोकैल्सीमिया रिलेटिवली आपको, अगर फर्ज करें जो लेवल था बॉडी में वो था 2 या 1.9, लेकिन एल्ब्यूमिन के कम होने की वजह से वो 1.9 डिटेक्ट होता है 1.6 फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो एल्ब्यूमिन अगर कम है बॉडी में तो कैल्शियम का जो टेस्ट है वो सही नहीं होगा, और फिर हम उसको सही करने के लिए करेक्ट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द करेक्टेड कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। और ये करेक्शन कैसे करते हैं कि वी ऐड 0.02 मिलीमोल्स पर लीटर to calcium level for each 1 gram per liter of low albumin। नॉर्मल जो बॉडी में एल्ब्यूमिन है उसका जो लेवल है, अगर फर्ज करें नॉर्मल जितना होना चाहिए था उससे 1 ग्राम कम है, तो हम क्या करेंगे, हम जो रिजल्ट हमारा आया है कैल्शियम का, टोटल कैल्शियम का, उसमें 0.02 ऐड कर देंगे। सो दैट वुड बी दी करेक्टेड कैल्शियम। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी आप सीरम कैल्शियम भिजवाएं तो साथ में सीरम एल्ब्यूमिन जरूर भिजवाएं ताकि आप उसको करेक्ट कर सकें। और अगर एल्ब्यूमिन लेवल नॉर्मल है या हाई है तो फिर कोई इसका इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सट्रीमली लो है सीरम एल्ब्यूमिन तो क्या होगा, उस केस में आपका जो टेस्ट है कैल्शियम लेवल चेक करने का वो फेक होगा, वो एरोनियस होगा, उसका रिजल्ट ठीक नहीं। सो दिस इज द कंडीशन जिसमें कि हम आयनाइज कैल्शियम रिक्वेस्ट करते हैं लेबोरेटरी, क्योंकि इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द सीरम एल्ब्यूमिन। आयनाइज कैल्शियम जो है वो फ्री फॉर्म में होती है। सो आयनाइज कैल्शियम जो है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये हाइपरकैल्सीमिया की कॉजेज मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि पीटीएच के लेवल्स क्या हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। सो अगर पीटीएच के लेवल नॉर्मल हैं या ज़्यादा हैं और हाइपरकैल्सीमिया है तो उसकी क्या कॉजेज होंगी, और अगर हाइपरकैल्सीमिया के साथ पीटीएच के लेवल लो हैं तो फिर उसकी क्या कॉजेज होंगी, राइट। सो अगर नॉर्मल या एलिवेटेड पीटीएच लेवल्स हैं बॉडी के और हाइपरकैल्सीमिया है, क्योंकि पीटीएच अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरकैल्सीमिया होना चाहिए ना, हमारी जो थ्योरी है उसके मुताबिक। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कि पीटीएच नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी हाइपरकैल्सीमिया हो गया। सो दिस इज प्राइमरी और टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सो प्राइमरी में पीटीएच एलिवेटेड, टर्शरी में भी एलिवेटेड। रीजन फर्क है दोनों में, प्राइमरी में था एडिनोमा और हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा, राइट, और टर्शरी में ऑटोनोमसली एलिवेटेड पीटीएच रेज्ड होता है, ठीक है। सो दीज आर द कॉज। सो देन लिथियम जो है अगर उसकी वजह से हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें भी पीटीएच जो है नॉर्मल होगा। फिर एक फेमिलियल कंडीशन है जिसको कि हम कहते हैं फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ये एक फेमिलियल कंडीशन है जिसमें कि आपका जो पीटीएच लेवल्स हैं उनको वो या नॉर्मल होते हैं या वो ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर द 3 कंडीशंस जिसमें कि पीटीएच का जो लेवल है वो नॉर्मल होगा लेकिन फिर भी या एलिवेटेड होगा और हाइपरकैल्सीमिया होगा, राइट। अब देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें कि पीटीएच का लेवल लो होगा लेकिन फिर भी हाइपरकैल्सीमिया होगा। मैलिग्नेंसी का हमने जिक्र किया है। all the malignancies like lung cancer, breast cancer, myeloma, renal cancer, lymphoma or thyroid. So these malignancies have the potential to cause hypercalcemia irrelevant to PTH, क्योंकि PTH जो है वो या लो है यहाँ पर लेकिन फिर भी हाइपरकैल्सीमिया होगा सर द मैलिग्नेंसी। विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, आपको पता है विटामिन डी का फंक्शन मैंने बताया था कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाती है। अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी किसी ने खा ली है या इंजेक्शंस लगा लिए हैं तो उसकी इंटॉक्सिकेशन होती है। उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। पीटीएच नॉर्मल है या लो है बल्कि, और
vitamin D intoxication. फिर sarcoidosis, another condition which would cause hypercalcemia. HIV/AIDS, thyrotoxicosis, Paget's, milk alkali, glucocorticoid, thiazide. So all these are the condition in which the PTH would be low, but still there would be hypercalcemia. So this was the causes of hypercalcemia according to PTH levels. पापा जान क्यों PTH और कैल्शियम चेक करने के अलावा और कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं to find out the parathyroid? One is the ultrasound of the parathyroid gland, and this would show an adenoma of the parathyroid. Here you can see this is the adenoma. It's a big adenoma. These are the dimensions of adenoma, and here in the color Doppler you can see that this adenoma has got a vascularity, right? So parathyroid adenoma which has got a vascularity, it would be so ultrasound, then color Doppler, Doppler ultrasound of the parathyroid gland. Then you can perform MRI scan of the neck and the thorax, upper thorax. Here you can locate that where is the thyroid gland, the parathyroid gland, and what is the problem in it. Here in this picture you can see that normally this is the location for thyroid gland and parathyroid भी इसके यहीं होने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नेक में है, ये नीचे, राइट? ये आपका नेक स्टार्ट हो गया, नेक का जो सो यहाँ पर एमआरआई की आपने किया तो आपको पता चला कि थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एक तो एक्टोपिक है और सेकेंडली उसके अंदर एडिनोमा भी है. सो एमआरआई ऑफ द नेक एंड द thorax you can perform. So this is the then there is a CT scan of the mediastinum, right? जो हमने बताया था कि mediastinum में भी ये हो सकता है ectopically. So अगर आप mediastinum का CT scan करेंगे contrast enhance या normal, so आपको पता चल जाएगा कि जी ectopic parathyroid adenoma है और वो कहाँ पर लोकेटेड है. ये इस कंडीशन, इस पिक्चर में ये आपकी जो इसोफेगस है, ये इसोफेगस है और इसके पीछे ये आपका जो है वो एडिनोमा पड़ा हुआ है. सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन व्हिच यू कैरी आउट इन अ पर्सन हु हैज गॉट हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. देन बोन जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन और पीटीएच के हाइपरपैराथायरॉयडिज्म से बोन इफेक्ट होती है. तो अब बोन की जो टेस्टिंग है वो हम एक्सरे से भी पता कर लेते हैं हमें कि बोन का जब एक्सरे देखते हैं तो वो ऑस्टियोपेनिक होता है, आपको इतना वो ब्राइट नहीं नजर आता बोन. लेकिन जो उसके लिए डेफिनेटिव टेस्ट है दैट इज दी ड्यूअल एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्री सिस्टम, जिसको कि हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, डेक्सा. और इसमें एक चीज होती है जिसे टी स्कोर कहते हैं, राइट? सो टी स्कोर इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम अ यंग एडल्ट मीन, हाँ यंग एडल्ट. सो एक नॉर्मल फिट बंदे का हम एक टी स्कोर कर लेते हैं, उसका ये वाला टेस्ट करते हैं उसके हिप जॉइंट पे, राइट? हिप जॉइंट पे क्योंकि पेल्विक बोन जो है इट इज द लार्जेस्ट बोन, नॉट द लॉन्गेस्ट बट द लार्जेस्ट या वाइडेस्ट बोन, जिसमें कि आपका जो बोन मैट्रिक्स है वो बहुत अच्छी तरह डिस्प्ले होता है, इसीलिए इसको हिप जॉइंट पे करते हैं. सो हिप में मेन और वुमेन के लिए अलग-अलग टी स्कोर्स हैं हिप के लिए, राइट? और इसके अलावा ह्यूमरस में भी कर सकते हैं, फोरआर्म में भी, रिस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिप में ही करते हैं. नॉर्मली जो है 1 to 2.5 जो है वो ऑस्टियोपेनिया कहलाता है. टी स्कोर बिलो 2.5 is osteoporosis, and if it is very low and fragile fractures भी हो रहे हों, so it would be labeled as severe osteoporosis. Right. Next, what are the complications of hypercalcemia? Calcemia अगर hyperparathyroidism की वजह से hypercalcemia हो गया तो उसकी complication हो सकती हैं. So the complications can be the sinus bradycardia,
हार्ट arrhythmia, hypertension, pancreatitis, peptic ulcer, nephrolithiasis and vascular calcification accelerated, ये सारा हमने पहले पढ़ लिया। हाइपरकैल्सीमिक सिंड्रोम में ये पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस, फटीग, मेंटल स्टेट चेंजेस, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। इसके अलावा कॉर्निया में डिपॉजिट होती है जिसे हम बैंड केरेटोपैथी कहते हैं। एक बैंड लाइक कैल्सिफिकेशन होती है, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा आगे। इसी तरह शॉर्ट क्यूटी इंटरवल हो जाते हैं और एक्टोपिक होना शुरू हो जाती हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। प्लूराइटिस इज अनदर साइन। सो ये आप देखें कि ट्रीटमेंट की अब बात कर रहे हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ दी हाइपर पैराथायराइडिज्म, राइट। और इसमें ये देखें आप, एडिनोमा है और इसको हम रिमूव कर देते हैं, सो सर्जरी होती है और फिर बंदा ठीक हो जाता है। बाकी 3 ग्लैंड जो है वो काम करते रहते हैं। इस तरह रीनल स्टोन्स हैं, ये भी हम निकाल देते हैं, किडनी स्टोन्स, ये स्टोन्स हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन है। यहाँ पर ये बाइल स्टोन्स हैं जिसे हम बिलियरी स्टोन्स कहते हैं या गॉलब्लैडर स्टोन्स कहते हैं, ये भी सर्जरी से निकाल देते हैं। सो बेसिक ट्रीटमेंट इसका वो है सर्जिकल। ये सॉल्ट एंड पेपर, आपको स्कल इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आप देखें तो ये आपको ये सारे के सारे ये डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, राइट, ये देख रहे हैं। तो ये जो है ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, मैंने बताया था कि ये जो पेरिओस्टियम है इसके नीचे रिजॉर्प्शन जब होती है तो एक स्पेसिफिक फीचर बनती है जिसे कि हम ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं, और ये रेडियस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है। ये सब पेरिओस्टियल बोन रिजॉर्प्शन हुई है, और ये आप देखेंगे दिस इज ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ये जो जाइंट सेल ग्रेनुलोमा या एपुलस का मैंने बताया था आपको, ये हाइपरपैराथायराइडिज्म में होता है। इस तरह जो बोन्स, ये टीथ है, इसका जो लेमिना ड्यूरा है इसका लॉस हो जाता है। दिस इज पैथोग्नोमोनिक ऑफ ओरल चेंजेस इन हाइपरपैराथायराइडिज्म। ये 2 चेंजेस जो हैं दीज आर पैथोग्नोमोनिक। ये बैंड केरेटोपैथी है कि आपका जो कैल्शियम है वो एक बैंड की शक्ल में ये डिपॉजिट हो जाता है, और ये स्टार्ट होता है 3 और 9 o'clock पोजीशन पे। ये 3 o'clock है और ये 3 o'clock है और ये 9 o'clock, राइट। सो ये एक पूरे का पूरा बैंड जो है वो बन जाता है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें एडिक्वेट हाइड्रेशन देते हैं, सेलाइन आप इन्फ्यूजन देते हैं कैल्शियम लेवल कम करने के लिए, फिर फोर्स डायग्रेसिस आप करते हैं to increase the urinary excretion of calcium rapidly along with the sodium to prevent reabsorption by the renal tubule। आप कैल्शियम के साथ नॉर्मल सलाइन भी दे रहे हैं, कैल्शियम नहीं दे रहे, नॉर्मल सलाइन या फोर्स डायूरेसिस जिसे नॉर्मल सलाइन के अंदर आप डायूरेटिक डालते हैं, सो सोडियम की प्रेजेंस की वजह से कैल्शियम दोबारा से रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसलिए इसको सेलाइन डायूरेसिस भी कहते हैं। सो these are the therapy for hypercalcemia, and ये hydration with saline, ठीक है। फिर forced diuresis, saline plus loop diuretic, so simple saline भी दे सकते हैं, diuretics और saline भी दे सकते हैं। Bisphosphonate, these are the drugs, etidronate, pomidronate and zolendronate. These are the drugs which would counter the effect of this parathyroid hormone, so these are also given। एंड कैल्सीटोनिन जो है इट इज ऑल्सो यूज इन सर्टन कंडीशन, जैसे मैंने बताया पेजेट्स डिजीज में यूज करते हैं, और लेकिन इसको स्पेयरिंगली यूज करना होता है। हर हाइपरकैल्सीमिया में हम कैल्सीटोनिन नहीं दे सकते। फॉस्फेट आपको पता है इसका और कैल्शियम का ऑपोजिट होता है, सो अगर हम फॉस्फेट देते हैं ओरल या इंट्रावीनस फॉर्म में, सो दिस वुड कॉज हाइपर फॉस्फेटीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि ये उसके लेवल्स को कम करेगा, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हम दे सकते हैं और इनका एक एंटी ट्यूमर इफेक्ट होता है, राइट। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरकैल्सीमिया है तो हम डायलिसिस करके उस कैल्शियम को निकाल भी सकते हैं, और ये उन पेशेंट में ऑप्शन होती है जिनमें के रीनल फेलियर भी होता है साथ में हाइपरकैल्सीमिया के। सो वंस वी डू दी डायलिसिस along with urea and other toxic agent, we also take out calcium। नाउ इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या है, क्या क्या होनी चाहिए। सो सिग्निफिकेंट हाइपरकैल्सीमिया अगर है
ठीक है, जिसमें हमने लेवल्स बताया था कि मोर देन 3.5 अगर हो गए सो सर्जरी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन बन गया, सर्जरी करनी है आपने। बोन मैस अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कम हो गया फॉर द एज, so that is a uh, that is a dangerous sign. If you don't do the surgery and take out these adenomas or whatever it is, so it would cause the permanent bone damage. So this is an indication. फिर एज लेस देन 50 है और इनफिजिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फॉलोअप, ऐसे लोग जो कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप नहीं करवा सकते हैं या जिसकी एज लेस देन 50 है, उसमें सर्जरी करके जो भी एडिनोमा होता है उसको आप निकाल देते हैं और फिर पेशेंट को फॉलो करते रहते हैं। सो ये एक पूरा इसका ट्रीटमेंट का प्लान है कि आप इनको फोर्टिफाइड, जब उसकी सर्जरी हो जाती है तो कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम विटामिन D3 भी देते हैं उनको उसके बाद, सर्जरी के बाद एनाबॉलिक स्टीरॉइड, कैल्सिटोनिन की जरूरत पड़ सकती है, फिजियोथेरेपी की जरूरत भी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इट इज ऑल ऑपोजिट टू हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। जो कुछ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में होता है उसके ऑपोजिट है, राइट। और क्योंकि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में हाइपरकैल्सीमिया होता है तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हाइपोकैल्सीमिया होता है। और कैल्शियम आपको पता है कि ये हमारी जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिसको कि हम न्यूरॉन्स की जो एक्शन पोटेंशियल्स हैं उसके साथ बड़ा इसका ताल्लुक होता है, तो इसलिए ये उस पर इफेक्ट करता है और पर्सन कैन हैव फिट्स या टेटनी हो सकती है, उसको हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम इसका एक दूसरा नाम है। सो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का दूसरा नाम डाइजॉर्ज सिंड्रोम या ऑस्टियोमलेशिया है, और सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी एक टर्मिनोलॉजी है। ये एक बंदा है जो ओपिस्थोटोनस में आपको नजर आ रहा है, ये इसका सर है, ये इसकी टांगे हैं, ये आर्च ये पूरा ये बना हुआ है, राइट। सो दिस इज स्पेसिफिक ऑफ टेटनी। सो कॉजेज इसकी हाइड्रोजेनिक हो सकती हैं। आपने सर्जरी की थायराइड की और टोटल थायराइडेक्टमी की, उसके साथ साथ पैराथायराइड को छोड़ना होता है, ग्लैंड्स को आपने वो भी निकाल दिए, सो हाइड्रोजेनिक। ऑटोइम्यून, बाकी जो आपके ग्लैंड्स हैं उनमें ऑटोइम्यून डैमेज होता है, इसमें भी यू कैन हैव ऑटोइम्यून डैमेज टू दी पैराथायराइड ग्लैंड। कंजेनिटली एब्सेंट हो सकते हैं या कंजेनिटली इसका जो हार्मोन है, जो पीटीएच है, उसकी प्रोडक्शन के एंजाइम्स डेफिशिएंट हो सकते हैं। सो कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है, हाइपोपैराथायरायडिज्म। iron deficiency, iron deficiency, so there are certain ions which are related with this parathyroid gland, अगर इनकी deficiency हो तो वो भी it can cause then neonatal, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उनमें certain chromosomal defects होते हैं जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन नहीं बन सकता या नहीं एक्टिव हो सकता, राइट। और फिर इसी तरह अगर डिपॉजिट्स हो जाएं पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर किसी भी चीज़ के, तो फिर वो भी हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकता है। हाइड्रोजेनिक में बता दिया कि सर्जरी थी, टोटल थायराइडेक्टमी या रेडिएशन किया नेक को आपने, लिम्फोमा की वजह से आपने लिम्फ नोड्स को रेडिएट करना है, या फिर मीडियास्टिनल कोई ग्रोथ है उसको आपने रेडिएट करना है, तो आपने डैमेज कर दिया उसको। फिर इसी तरह एक कंडीशन होती है हंग्री बोन सिंड्रोम कहते हैं। बोन जो होती है उसमें बहुत कम कैल्शियम रह जाता है और वो हंग्री होती है कैल्शियम के लिए। जैसे ही आप सर्जरी करते हैं तो कैल्शियम जो होता है वो सारे का सारा वो मोस्टली ब्लड में होता है, राइट। सो अब बोन जो है वो ठीक हो गई है, तो आपने पैराथायराइड निकाल दिया, बोन्स पे जो स्टिमुलस था वो कम हो गया, तो वो बोन्स सारा कैल्शियम खाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, आफ्टर द सर्जरी। सो द पर्सन वुड हैव रिड्यूस्ड कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, सो दैट इज कॉल्ड द हंग्री बोन सिंड्रोम। ऑटोइम्यून जो था वो प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है, उसकी जो एवरेज एज है वो 7 ईयर्स है, लेकिन 6 महीने से 20 साल के बच्चों में ये हो सकता है। ऑटो इम्यून इसमें कॉजेज होती हैं, और या ये स्पोरेडिक हो सकती हैं या फेमिलियल भी हो सकती हैं। इसमें 2 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम, जिसको एनईएम्स आप पहले कहते होते थे कि मल्टीपल न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरोपैथीज, एंडो न्यूरो मल्टीपल
एंडोक्रेनोपैथीज होती हैं, सही है। सो उनमें जो टाइप 1 होती है उसमें एक जो है ये वाला डिफेक्ट भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हैम सिंड्रोम and it includes primary hyperparathyroidism that is due to destruction of the gland. So autoimmune destruction होती है, right? So ये आपकी जो MEN type 2 1 है उसका ये एक पार्ट हो सकता है। अब सर्टन आइंस की हमने बात की थी, इसकी डेफिशिएंसी होती है और मेटल का ओवरलोड होता है। अब वो किन कंडीशंस है? हीमोक्रोमेटोसिस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लेक्चर दिया था। विल्सन डिजीज, कॉपर बढ़ गया बॉडी के अंदर, आयरन बढ़ गया, मैग्नीशियम बढ़ गया, एल्युमिनियम बढ़ गया, ठीक है। सो और मैग्नीशियम कम हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स दे अफेक्ट दी parathyroid hormone and person will have hypoparathyroidism in these conditions. इन्फिल्ट्रेशन में हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन, ग्रेनुलोमेटस डिजीज कोई भी अगर है, टीबी है, इसी तरह एमोलाइडोसिस, एमोलाइड डिपॉजिट हो गया, सिफिलिस डिस्ट्रॉय हो गया ग्लैंड आपका, प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सो दीज आर द इन्फिल्ट्रेटिव कॉजेज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब न्यूनोटल कॉजेज जो था कि बेबी ऑफ अ मदर विद हाइपरकैल्सीमिया, ऐसी खातून जिसके अंदर हाइपरकैल्सीमिया है उसका जो बेबी है वो हाइपोथायराइड हाइपोपैराथायराइड होगा। क्यों? क्योंकि पीटीएच इनकी बॉडी में जिनमें हाइपरकैल्सीमिया होता है वो कम होता है, और ये पीटीएच जब उसमें जाता है, फीटस में जाता है, तो फिर वो उनमें भी कम होता है और फिर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है इनमें, सही। Now, in congenital causes में isolated primary hyperparathyroidism हो सकता है कि सिर्फ ये है और कोई भी कॉज नहीं है। ब्रेंकियल डिसजेनेसिस, ब्रेंकियल सिस्ट आपने पढ़ी होगी कि ये जो ब्रेंकियल सिस्ट हैं ये ग्रो करती हैं जिसकी वजह से आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड बनता है। सो अगर इसका कोई प्रोडक्शन का डिफेक्ट हो तो फिर भी आपका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। सो मोनोजेनिक डिफेक्ट हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। सो ऑल दीज कंडीशन कैन कॉज कंजेनिटल डिफेक्ट। डायबिटिक एम्ब्रियोपैथी, ऐसी खातून जो डायबिटिक होती है उनका जो एम्ब्रियो है वो उसमें ऐसे चेंजेस आती हैं कि उनमें पर्सन को दे कैन हैव ऑटोइम्यून डैमेज या दे कैन हैव डैमेज टू देयर पैराथायरॉयड ग्लैंड, राइट। और इनमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है इनमें, और फिर शॉर्ट स्टेचर होती है, मेंटल रिटार्डेशन और फिट्स होते हैं। सो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कैन बी पीटीएच डेफिशिएंट, हो सकती है कि पीटीएच बन ही नहीं रहा, एक्टिव फॉर्म बन रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ट्रिपल पी, डबल पी और फिर पीटीएच, प्री प्रो पीटीएच, प्रो पीटीएच और एंड पीटीएच। सो ये जो कन्वर्जन है इसके स्टेप्स जो हैं उस पर कोई हार्मोन कोई एंजाइम डेफिशिएंट है, सो उसकी वजह से भी पीटीएच मौजूद है लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पा रहा। सो दैट इज द कॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। फिर किडनीज और बोन जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं पीटीएच को। किडनीज ने जाके इसमें इफेक्ट करना है, बोन ने जाके इफेक्ट करना है। सो जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। What is pseudo hypopathyroidism? It is कि पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, लेकिन टिश्यूज जो हैं उसके एंड ऑर्गन जो हैं वो इनसेंसिटिव हो रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर वो एक्ट ही नहीं कर पा रहे। जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज होती है जिसमें कि इंसुलिन बॉडी के अंदर होती है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह यहाँ पर सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसीलिए इसको सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नहीं है लेकिन सूडो फॉर्म है उसकी, कि वो हार्मोन मौजूद है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा। और इसके क्या होता है कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी होती हैं, और रेयर इंडिविजुअल्स हैव प्लेंटी ऑफ पीटीएच बट देयर ऑर्गन्स डू नॉट बिहेव अप्रोप्रिएटली। इससे क्लिनिकल फीचर्स जैसे मैंने बताया था कि टेटनी हो जाएगी, मसल स्पैज्म हो जाएगा, और ये ऑब्स्टेट्रिशियन जो है व्हेन दे डू दी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, so they just do their hand like this so that they can easily penetrate the vaginal orifice. So obstetrician hand जो है it is characteristic of hypocalcemia, right? टेटनी जिसे हम कहते हैं उसके साथ इसका ये हैंड की टेटनी भी हो जाती है, राइट। इसी तरह इसके जो फेशियल मसल्स हैं उनका जब स्पैज्म होगा तो इससे फिश माउथ या सरडोनिक
सार्डोनिक फॉर्म कहते हैं। इसी तरह जो है वो ट्रिस्मस होगा इनमें कि मसल जो हैं फेस के वो क्लेंच, उनका जो फेस है वो ऐसे क्लेंच हो जाएगा। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। फिट्स पड़ सकते हैं, कैटरेक्ट इनमें जल्दी बन जाता है, हेयर लॉस हो सकता है, इनकी स्किन्स और नेल्स पे इफेक्ट होता है, वो भी ड्राई हो जाती हैं, मेलफॉर्म हो जाती है। सो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। एंजाइटी, पैरास्थीसियाज, होर्सनेस, लेरिंगोस्पैज्म की वजह से हो जाता है। रेजिस्टेंस टू डिजिटलिस, डिजिटलिस इज अ ड्रग, अगर हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो वो अफेक्ट नहीं करती, राइट। इसी तरह यीस्ट इन्फेक्शन होती है, कैंडिडियासिस होता है, टूथ की डेवलपमेंट होती है। दो इंपॉर्टेंट साइन है, चोबॉस्टिक साइन, यू टैप दी ट्रिगर जो आपका ट्रेगस होता है ईयर का, उस पर आप टैप करते हैं तो फेशियल मसल की ट्विचिंग होती है, दैट इज दी चोबॉस्टिक साइन या चोबॉस्टिक व्हीज साइन। और ट्राउजियर साइन ये होता है कि आप जो स्विग्मोमैनोमीटर जो है उसका कफ उसको इन्फ्लेट करते हैं और उसको इन्फ्लेट करके रखते हैं अबव दी सिस्टोलिक लेवल, और उसमें आप देखते हैं कि ऑब्स्टिट्यूशन हैंड बन जाता है या हाथ का स्पैज्म हो जाता है, हाथ के मसल्स का, दैट इज दी ट्राउजियर साइन। लेबोरेटरी में पीटीएच लेवल्स आप चेक करते हैं, कैल्शियम लेवल चेक करते हैं। प्राइमरी में क्या होगा कि पीटीएच का लेवल भी कम होगा और कैल्शियम भी कम होगा। सूडो हाइपोथैलेमस में क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल कम होगा, लेकिन कैल्शियम का लेवल ठीक होगा, लेकिन पीटीएच जो है उसके लेवल ज्यादा होंगे, राइट, सूडो में। और सेकेंडरी में क्या होगा कि पीटीएच का लेवल कम होगा और कैल्शियम लेवल हाई होगा, राइट। हाइपोकैल्सीमिया होगा, कैल्शियम के लेवल्स लो होंगे। विटामिन डी का भी मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी डेफिशिएंसी से भी हाइपोकैल्सीमिया की तरह के फीचर्स आ सकते हैं। मैग्नीशियम, फॉस्फेट, इनको भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ईसीजी आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कोई ओवर, ओके बस ठीक। सो then once you treat a patient you also take the dietary steps, और ये वो हैं डाइट्स जो कि आपको एक्सेस ऑफ कैल्शियम दे सकती हैं। ये सर्टेन प्रिपरेशन है जिसमें कि कैल्शियम आपका मौजूद होता है, राइट। सो विटामिन डी भी आपको देना होता है, ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल में बिसफॉस्फोनेट मैंने बता दिया था, ये भी हेल्प करते हैं। एक्यूट अटैक में आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है, याद रखें, टेटनी के एक्यूट। सो थैंक यू वेरी मच।